हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो चैप्टर आज करेंगे 15 काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, यानी देखा जाए तो संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ पर है, जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक और चैप्टर कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों। इवन कि जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Constitutional value and political system in India, our next chapter. There is a most important chapter here, constitutional value and political system in India. There is a come to the first point in this chapter. There is a Constitution of India. Constitution of India. There is an important. Let's begin with the discussion of the Constitution of India. But even before that is a question that I need for be answered is, what is the meaning of the term of Constitution? There is a most important question on here. In this question, there is an answer here. Meaning of Constitution. You maybe have come across the term Constitution quite often. It is a use of various contexts, such as the Constitution of a state or nation, Constitution of the associations or union, Constitution of the sport clubs, Constitution of the non-governmental organization, mean NGO, and subcontinent of company and so on. Does this term is mean the same in all this context? No, it is not so. As used commonly, Constitution is a set of the rules generally written which define and regulate their structure and the functioning of an organization, institution, or a company, but when it is used in the context of the state and nation, the constitutions mean a set of fundamental principle, basis rule, and establish a precedent. The means of standard instance. It is identify, define, and regulate various aspects of the state and the statutes, power, and function of the major institution under the three organs of the government. There are executive, legislative, and judiciary. This is important. There are three organs of the government here: executive, legislatures, and judiciary. It is also provide the right and freedom of citizens and spell out relationship between two individual citizens and state and government. A constitution may be a written or unwritten. There is a constitution may be a written or unwritten. What is a constitution? Fundamental law of their land. It is a supreme and ultimate authorities. Any discussions or action which is not accordance with it will be unconstitutional and unlawful. A constitution also lays down the limits on the power of the government to be avoid to the views of the authorities. Moreover, it is not a static but is a living document. There is a living document because it is a need to be amended as and then to the require to keep its update. It is a flexibility enables it is a change according to the changing aspiration of the people, the need of the time, and the change are taking place in the society.
The important point in this box, unlike the constitution of most of the democratic countries, the British constitution is known as the unwritten constitution because it is a largely unwritten and uncodified. It not be formed as the complete statement like the constitution of the USA or Indian constitution. The constitution of USA and the Indian constitution are written constitution. There is an important point here. Constitution of the USA and the Indian Constitution, they are written form. And next point here, the Indian Constitution. Have you seen the document of Indian Constitution? Do you recognize this cover page showing in the iterations? If you have seen or if you get a chance to be see it, you will be agree that it's a very lengthy document. In fact, Indian Constitution is the longest of the written constitution. It is prepared by the representatives body known as the Constitutional Assembly. Most of its members were deeply involved in the freedom struggle. They are respectfully called to the founding father of Constitution. They are respectfully called the founding father of Constitution. The process of constitution making was great influenced by the following factor: aspiration generated during the long dress freedom struggle, and second here the constitutional and political change that took place during the British rule, and third there is idea and thought there is a Mahatma Gandhi, popularly known as the Gandhiism, and fourth here the social culture ethos of the country, and there is a fifth here the experience of functioning of constitution of the democratic country of the world. The Constitution came into effect on 26 January 1950, and the reason there we celebrate this day as the Republic Day every year. You know that you see the one diagram picture is the cover page of document. There are Constitution page, Constitution first page on your screen. There is the most important on your screen here. The one point is come on your screen in this box. There is a most important point here and notable point also. The Constituent Assemblies began to prepare a constitution on 9 December 1946. This time there is a most important time here. 9 December 1946. Dr. Rajendra Prasad was elected as a president on 11 December 1946. Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar was the chairman of drafting committees. The Constitutional Assembly met for a 166 day. The meet for a 166 day spread over to period of 2 years, 11 months and 18 days. The Constitution spread here 2 years, 11 months and 18 days. The making of Constitution was completely on 26 November 1949. The Constitution completed 26 November 1949, but spread here on 26 Jan 1950. Why? Because first Independence Day celebrated here 26 Jan 1930. This day remember here and when the Constitutional Assembly adopted a draft Constitution of India. There is a most important point here. The Constitution of India is defined all accept their Indian political system, including its basic objective. It has a provision regarding the territory that India will be comprised, citizenship, fundamental right, directive principle of state policy and fundamental duties, the structure and function of government at the unions, state and local level, and several other aspects of the political system. It is defined India as a surrogate is a democratic, socialist and secular republic. It has a provision for their varying about the social change and defining the relationship between individual citizen and the state. This is an important point here. आज जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था। देखिए भारत के अगर संवैधानिक मूल्य की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहते हैं महत्वपूर्ण अपने जगह पर काफ़ी महत्वपूर्ण भी रखता है। और इसी के अंतर्गत हमारा जो पहला पॉइंट आया है भारत का संविधान।
तो सबसे पहले भारत के संविधान के बारे में हम विस्तारपूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू के। तो इसके लिए आपको हर एक वीडियो देखने की आवश्यकता होगी और समझने की आवश्यकता होगी। अगर आप अच्छे से देखते हो, समझते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करें हम भारत के संविधान की, तो अब हम भारत के संविधान पर चर्चा करेंगे और इससे पहले इस प्रश्न का उत्तर भी जानना आवश्यक होगा कि किस संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी कि संविधान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि संविधान क्या है। हम लोग कहते हैं हमारे देश में संविधान है, तो आखिर संविधान का अर्थ क्या है और हम इसके बारे में क्या जान सकते हैं जो हमारे लिए सही होगा। दोस्तों, बच्चे तो सभी पढ़ते हैं, सभी जानते हैं और सभी समझ भी लेते हैं, लेकिन वास्तविकता समझ अभी तक भी अधूरी है। मैंने बहुत जगह देखे हैं, बहुत जगह सुने हैं, समझे हैं और मैंने पाया है कि बच्चों को पूरी जानकारी नहीं होती है। वो याद करने के लिए, रटने के लिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन वास्तविकता हमारा भारत के संविधान के बारे में उनको बहुत ही कम नॉलेज है, कम इन्फॉर्मेशन है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं भी जानता हूँ और आप लोग भी जानते हो। चलिए इसी बात पे हम विस्तारपूर्वक चर्चा करें और जानें कि संविधान जो है उसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो इसके लिए आपको 53 सेकंड के साथ बने रहने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं संविधान का अर्थ क्या है। अब सबसे पहला बात तो यही आता है कि संविधान का अर्थ। अपने संविधान शब्द कई बार सुना भी होगा और इस शब्द का प्रयोग कई संदर्भ में किया भी जाता है, जैसे राज्य या राष्ट्र का संविधान, संगठन, संस्था, यूनियन का संविधान, खेल क्लब का संविधान, गैर सरकारी संस्थान का संविधान यानी एनजीओ, किसी कंपनी का संविधान आदि। तो इसका मतलब अगर वास्तविक में देखें तो इसका मतलब यही होता है रूल रेगुलेशन। आपने हर जगह देखा होगा, कहीं भी जाओ, चाहे खेलने जाओ, चाहे सरकारी संस्थान में जाओ, कोई यूनियन में जाओ, वहाँ पर कोई ना कोई रूल रेगुलेशन आपको मिल ही जाते हैं और इन्हीं रूल रेगुलेशन से हमें बंधना भी पड़ता है। अगर आप नहीं बनते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, जनरल सी बात है। और भारत में भी अगर आप, क्योंकि भारत भी एक कहते हैं देश है, अगर यहाँ पर जो संविधान में लिखी है अगर उन रूल रेगुलेशन पे अगर आप नहीं चलते हो तो जनरल सी बात है आप सज़ा के अधिकारी हो जाओगे, यानी आपको सज़ा दिया जा सकता है। तो यही बात यहाँ बताता है, कोई भी संस्था देख लीजिए, वहाँ पर कोई ना कोई संविधान, कोई ना कोई रूल रेगुलेशन आपको अवश्य मिल जाता है। क्या संविधान शब्द का अर्थ इन सभी विभिन्न शब्दों में एक सामान्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। सामान्यतः संविधान शब्द का प्रयोग नियम और कानून के एक ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो ज़्यादातर लिखित होते हैं, यानी संविधान लिखित होती है। अब बात यहाँ पर आ गया कि भारत का संविधान भी लिखित है, तो हमारे भारत के संविधान को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आप देखोगे कई देशों की संविधान जो है लिखित रूप में नहीं है। हमारा देश और यूएसए के देश कई जगह हैं जहाँ पर जो है संविधान लिखी गई है। दोस्तों, रीज़न यही था कि जब संविधान बनाई गई तो सबसे बुद्धिजीवियों ने यही बात सोचा कि भारत जो है इतनी पढ़ी लिखी जनसंख्या नहीं है यहाँ पर, और कहते हैं आपको तो पता ही होगा कि एक शब्द यहाँ पर कुछ निकलता है और आप तक पहुँचते पहुँचते उस शब्द का मतलब ही बदल जाता है। तो इसीलिए उन बुद्धिजीवियों ने ये बात बहुत ही गौर किया और सोचा कि भारत जो है इतनी पढ़ी लिखी जनसंख्या नहीं है, अगर संविधान को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो आने वाला समय में इसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। इसलिए उन्होंने संविधान के लिखने का प्रस्ताव पास किया और इसको लिखित रूप दिया गया। अब संविधान जिस समय लिखी गई थी ऐस का तहस आज वैसा ही हमें मिलती है, तो इससे जो है कोई रूल रेगुलेशन में चेंज नहीं आया है और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलता है कि संविधान का आप अर्थ नहीं बदल सकते। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात था कि ज़्यादातर लिखित होते हैं तथा जो किसी संस्था, संगठन, कंपनी संरचना और कार्य प्रणाली परिभाषा तथा निमित्त भी करते हैं। जनरल सी बात है, कोई भी चीज़ जहाँ अगर कहीं काम करते हो, संस्था, कंपनी, कहीं भी जाओगे तो वहाँ सबसे पहले तो रूल रेगुलेशन ही समझाए जाते हैं कि हमारी कंपनियाँ के ये रूल है, हमारे कंपनी का ये रूल है, आपको इस रूल से चलना पड़ेगा। अगर आप इस रूल से चलोगे, ऐसे आप टाइम लगाओगे तो आपके ऐसे पैसे काट लिए जाएंगे, आपको एक भी लग गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सी रूल रेगुलेशन होती है। तो हमारे देश में भी कुछ रूल रेगुलेशन है जिसको आप हर एक जो है भारत के नागरिकों को मानना चाहिए, और कोई व्यक्ति अगर इस नियम रूल रेगुलेशन का जो है खंडन करता है तो उसी प्रकार का जो है सज़ा का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। लेकिन जब इसका प्रयोग राज्य और राष्ट्र के संदर्भ में होती है तो संविधान का अर्थ मूल्य, सिद्धांतों, आधारभूत नियमों तथा स्थापित परंपराओं का एक समूह बन जाती है। तो ये समूह तो बनेगी ही बनेगी।
यह राज्य के विभिन्न पहलुओं तथा सरकार के जीवन अंगों, कार्यकारिणी, विधायक और न्यायपालिका के अंदर प्रमुख संस्था की संरचना है। यानी देखा जाए तो सरकार के 3 अंग, जिसे में हम कार्य प्रणालिका, विधायक और न्यायपालिका के अंतर्गत ये प्रमुख होती है। ठीक है, अधिक तथा कार्य की पहचान भी कराती है और प्रभाषित भी करती है और नियमित भी करता है। ये नागरिकों के अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता का प्रावधान भी करता है और वैधिकता, नागरिक तथा राज्य सरकार के बीच संबंध भी स्पष्ट करता है। तो आप समझ गए होंगे कि संविधान हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये सरकार के 3 अंग, जो आपको पता ही है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, यानी कार्यकारिणी, विधायक और न्यायपालिका, ये तीनों को हमें पहचान कराती है और हमें इसकी परिभाषा, इसको नियमित कराती है। तो ये सब संविधान ही है जो हमें ये सिर्फ जो है बताती है। इवन कि हमें स्वतंत्रता के बारे में भी इसी में ही प्रावधान किया गया है। संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है, लेकिन इसमें देश के मूलभूत कानून समाविष्ट होते हैं। यानी देखा जाए संविधान हर एक देश में है और किसी भी देश में संविधान लिखित भी हो सकती है और अलिखित भी हो सकती है, और किसी भी देश में जो देश के हैं उसमें मूलभूत कानून ही उसमें सम्मिलित होता है और यह सर्वोच्च एवं परम्पर जो है मान्य ग्रंथ होते हैं। कोई भी निर्णय या कार्यवाही जो संविधान के अनुरूप नहीं हो वो संवैधानिक और गैर कानूनी मानी जाती है। संविधान सत्ता के दुरुपयोग को टालने के लिए सरकार की शक्ति पर सीमा लगाती है। देखिए संविधान कितनी महत्वपूर्ण है कि जहां नागरिकों पर भी अपनी शक्तियों का सीमा लगाते हैं, वहीं पर जो है सरकारों की शक्तियों पर भी सीमा लगाई जाती है। और इसके अतिरिक्त यह स्थिर नहीं बल्कि एक जीवांत दस्तावेज होता है। यानी जीवांत है, लिखी गई है, इसलिए ये दस्तावेज अभी भी जीवांत है, अभी भी हमारे पास प्रेजेंट है, क्योंकि इसे अत्यंत बनाए रखने के लिए समय समय पर संशोधित करना आवश्यक होता है। आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान की बहुत ही संशोधित किया गया है। ठीक है, और होता भी रहता है क्योंकि भारत का संविधान थोड़ा लचीला है और इसलिए जो है बहुत जल्दी संविधान का संशोधन भी हो जाता है। लेकिन वही हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो वहाँ पर कोई भी रूल रेगुलेशन इतना जल्दी संशोधित नहीं होती है और वहाँ पर कोई भी बात को संशोधित करने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया है। इसलिए जो है भारत का संविधान बहुत जटिल है। लेकिन अगर हम विदेशों के संविधान देखें तो वहाँ सरल है और इसको संशोधित करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भारत में बहुत से संविधान में संशोधित हो चुके हैं। इसकी जो है नमनशीलता लोगों की बदलती आकांक्षाओं, समय की जरूरतों तथा समाज में होने वाले परिवर्तन के अनुसार इसे परिवर्तित होते रहने योग्य बनाती है। यानी आप समझ गए कि यहाँ पर जो संविधान बनाई गई है बहुत लचीला बनाई गई है। यानी देखा जाए तो नमनशीलता लोगों की बदलती आकांक्षाओं और समय की जरूरतों और समाज में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार हमारे संविधान में सदैव जो है बदलाव होती ही रहती है। लेकिन देखिए अमेरिका जो विकसित देश है वहाँ के संविधानों में बदलाव नहीं होती है। मैंने कहा ना, वहाँ की संविधान इतनी जटिल है कि कोई भी रूल रेगुलेशन जो है पास कराने में बहुत ही मुश्किल होती है। इसलिए वहाँ के संविधान को संशोधित करना संभव नहीं रहता है और होता भी है तो बहुत ही। और मैं बता दूं कि वहाँ के संविधान में संशोधित मुश्किल से जो हुआ होगा अभी 8 या 10 हुए होंगे इतने सालों में, और भारत में देखिएगा तो कहते हैं 500-600 तो ऐसा ही अधिक हो गया होगा यहाँ जो है बदलाव। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। कहते हैं अगर संविधान कठोर होगी, संविधान अगर रूल रेगुलेशन वाली होगी तो सभी नागरिकों को मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि समय समय पर जो है संविधान के संशोधित कर दिया जाता है। लेकिन बदलाव तो होती है अच्छे के लिए, लेकिन उसका जो है सही प्रयोग नहीं किया जाता। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात आया है जो बॉक्स के अंतर्गत है। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों के संविधान ने से विभिन्न ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान का श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान से बहुत से संविधान बनाए गए हैं, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा अलिखित है, यानी अलिखित है और इसका जो है संहिताकरण नहीं किया गया, यानी इसको जो है लिखित रूप नहीं दिया गया है ब्रिटिश के संविधान को। देखिए सभी संविधान ब्रिटिश से ही बनाए गए हैं, लेकिन ब्रिटिश के संविधान जो है लिखित नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधान की तरह एक पुण्य दस्तावेज के रूप में नहीं किया गया है। अमेरिका का संविधान और भारत का संविधान जो एक दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है, लेकिन ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ये लिखित रूप में नहीं है, अलिखित रूप में है। और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान लिखित संविधान है। तो देखिए हर राज्य की, हर देश की अपनी अपनी विशेषता है, उसी प्रकार जो है वो विशेषताओं को धारण किया हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए भारतीय संविधान के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें।
भारतीय संविधान जो है, क्या आपने भारतीय संविधान का दस्तावेज देखा है? क्या आप निम्नलिखित चित्र में उसके जो है मुख्य पृष्ठ की पहचान कर सकते हैं? यदि आपने इसे देखा है या आपको इसे देखने का मौका मिलता है तो आप इस बात को सहमत होंगे कि यह बहुत ही बड़ा है। वास्तव में भारत का संविधान दुनिया का के सभी संविधानों में सबसे लंबा संविधान है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत के संविधान जो है बहुत लंबा है और बहुत ही बड़ा है। लेकिन अगर वो अमेरिका के संविधान देख ले तुलना करके, तो अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है और वो कहते हैं वो आप 1 घंटा में ही आप जो है संविधान पढ़ सकते हो। अमेरिका के संविधान को 1 घंटे में ही पढ़ सकते हो, लेकिन भारत के संविधान पढ़ने के लिए आपको कई दिन लग जाएंगे। तो समझ सकते हो कि भारत के संविधान में कितने बदलाव आ चुके हैं। और इसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। कहते हैं यह सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा गठित हुई थी और इसके अधिकतम जो है सदस्य जो है स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे। उन्हें आदर और संविधान निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, हमारा संविधान बनाया गया, तो इसमें सारे के सारे प्रतिनिधि जो थे स्वतंत्रता संग्राम में लगे थे और उन्होंने हर एक बात को जो है बड़ी ही सरलतापूर्वक बहुत सहज रूप में जो है संविधान में सम्मिलित किया। संविधान निर्माण प्रक्रिया पर निम्नलिखित जो है कारकों का बहुत बड़ा प्रभाव था, जैसे कि लंबे समय तक चले स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा पैदा की गई आकांक्षाएं कि स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन सी बातें मुख्य थी, उन सारी बातों को जो है जो संविधान में लिखी गई। जैसे आपको पता है जब भारत स्वतंत्र नहीं था तो बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा भारतवासियों को, और उन सभी समस्याओं का सामना न करना पड़े इसलिए संविधान में उन सभी बातों को जो है मुख्य तौर पर रखा गया। ब्रिटिश शासन के दौरान हुए राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव को भी इसमें सम्मिलित किया गया। गांधीवाद के नाम से लोकप्रिय महात्मा गांधी के विचारधारा को भी इसमें सम्मिलित किया गया, यानी कि गांधी जी के विचारधाराओं को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित किया गया। और देश की सामाजिक संस्कृति, सोच और परिवेश का भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। और दुनिया के अन्य लोकतंत्र देशों में संविधान के क्रियात्मक के अनुभव भी हुआ। और देखा जाए तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो आपको पता ही होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आप यहाँ पर जो पहला पुष्ट के देख रहे होगे ये कवर पेज है। कवर पेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कवर पेज है। तो इसी प्रकार के जो है पेज है जिसको आप देख रहे हो स्क्रीन पे, शायद पहले कभी ना देखा हो, लेकिन आप देख लीजिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं पेजों के अंदर जो है जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है, जो हमारे देश के जो है चलाने के लिए महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है और ये ज़रूरी भी है। और भारत का संविधान जो है लिखित है, ठीक है, अमेरिका के संविधान भी लिखित है और ब्रिटेन का संविधान लिखित रूप में नहीं है। और मैं बता दूं कि भारत का संविधान बहुत ही सरल है, आसान है, लेकिन इसको बहुत लेंथी बनाई गई है। लेकिन अमेरिका के संविधान जो है कहते सरल और स्वाभाविक रूप से सही है, लेकिन वहाँ की संविधान बहुत छोटी है और बहुत ही कम समय में पढ़ी जा सकती है। अब देखिए इस बॉक्स में एक शब्द आया है, एक पॉइंट आया है जो कि अभी महत्वपूर्ण है, जिसको आपको नोट भी कर लेना चाहिए और याद भी रखना चाहिए कि संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनाने कार्य आरंभ किया था। देखिए संविधान सभा को बनाने का आरंभ कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनाने का कार्य आरंभ हुआ था और 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आपको बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इनको ही जो है संविधान बनाने के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रतिरूप समिति के अध्यक्ष बने और कहते हैं इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की अवधि में संविधान सभा की 166 दिन बैठक हुई। देखिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन अवधि में 166 दिन की बैठक हुई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण संविधान रहा होगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत संविधान बनने में कितने समय लगे, तो आपको याद होना चाहिए कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और इसके दौरान जो है बैठकें हुई, 166 बैठक हुई। संविधान निर्माण जो है 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था और उस दिन संविधान सभा भारत के संविधान के प्रारूप में अंकित भी किया गया। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि संविधान निर्माण 26 नवंबर 1949 को हो गया, तो इसको 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? कहते हैं इतना दिन तक वेट क्यों किया गया? दोस्तों मैं बता दूं ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, किसी बच्चों को ये बात पता होगी।
कि प्रथम जो है स्वतंत्रता दिवस हमारा जो था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, जब अपने आप को हम स्वतंत्र घोषित कर लिए थे 26 जनवरी 1930 को। और संविधान बनाई गई हमारा 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान निर्माताओं ने ये बात सोचा कि जो हम प्रथम जो स्वतंत्रता दिवस मनाएं, क्यों न उसी दिन को याद रखा जाए। तो इसलिए उन्होंने जो है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में जो है हमारे संविधान को लागू किया गया। तो ये आप फैक्ट भूलना नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो है संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ही तैयार हो गया था और इसमें 166 बैठक हुई और इसको 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। लेकिन इसको लागू जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि इस दिन इसलिए लागू चुना गया क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन थी। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने प्रथम जो है स्वतंत्रता दिवस मनाई थी, इसलिए इसको जो है अंकित किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान भारत के राजनीतिक व्यवस्था के सभी पहलुओं के साथ साथ इसके आधारभूत उद्देश्य को भी परिभाषित करता है। और इसके प्रावधान भारत का जो है भू क्षेत्र हो, नागरिकता हो, मौलिक अधिकार हो, राज्य के नीति तत्व हो या मौलिक कर्तव्य हो, या केंद्र राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकारों की संरचना और कार्य प्रणाली तथा राजनीतिक व्यवस्था कई अन्य पक्ष से संबंधित हो। यह भारत को एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक समाजवाद तथा पंथ निरपेक्ष गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है। इसमें सामाजिक बदलाव आने तथा नागरिक और राज्य के आपसी संबंधों को प्रभावित करने संबंधी प्रावधान भी है। तो आप समझ सकते हो कि हमारा भारतीय संविधान कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी ज़रूरी है। और इसके आगे और बहुत कुछ है, तो आपके इसलिए बने रहना पड़ेगा तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आगे का टॉपिक देखना चाहते हो तो तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर को हेल्प करना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, इच्छा है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। पहली बार वीडियो देख रहे थे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य रख लीजिए, क्योंकि आपको पता है तिरपान सेंटर जो है 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत वीडियो उपलब्ध है। और ये झूठ नहीं सच्चाई है, आप इसके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको तिरपान सेंटर अच्छा लगता है सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना ही समझदारी होती है।